I audible? Anyone, please let me know. Am I audible? Okay. Voice not clear. Voice not clear. Voice not clear. Voice not clear. अभी बताओ. Audible. वॉइस क्लियर होना चाहिए. यू माइट हैव सीन के अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में काफी दिनों से ऐसा हो रहा है कि वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है, लाइक सिनुसॉइडल वेव की जैसे फ्लक्चुएट हो रही है. सो आई डोंट नो वो कैसे हो रही है, बट ओके चलो. आई होप कि अभी आपको आवाज आ रही है बराबर. देयर इज क्वाइट डिले इन वीडियो, आई थिंक सो. ऑडियो में भी डिले है कि मुझे बताओ. वीडियो में तो है डिले, थोड़ा हल्का सा डिले है, बट ऑडियो ठीक है अभी. हेलो, रिस्पॉन्ड मी. ओके. सो कहाँ थे हम लोग? डेडलॉक पर थे. प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, रिकवरी. I will be continuing with the same file so that I will convert it into the PDF, and then you can refer it uh, later. Okay. So we had a talk about this deadlock prevention, I think so. And the next target was deadlock detection. Okay. So in this particular session, we are going to cover deadlock detection and deadlock recovery. Okay. So deadlock recovery is nothing but the instruction and guidelines for you to come out of the deadlock. Okay. So how you can come out of the deadlock? So they have given some sort of instruction, so we can follow those instruction, and what will be the consequences of those instructions, that is only there in the recovery part. Okay. But in the deadlock detection, we can detect the deadlock using resource allocation graph, as I said you, that is resource allocation graph algorithm, that is raga. Okay. I told you in the last session only. I think the day before yesterday. So raga will be converted into the wait for graph, that is WFG. Okay. And from wait for graph, we will come to know that whether there is a deadlock in the system or not. Okay. Then how many processes and resources are involved in the transaction or communication. So we will come to know with the help of this wait for graph that there is a deadlock or not. Is there a deadlock or not? Okay. So uh, in my video you will see this thing. Some theory part you will see. Okay. Some theory part is there. Okay. So we had gone through about the deadlock prevention. Actually मैंने सबको एक एक छोटा छोटा, when I'm starting with the new topic, that is deadlock detection. As I said you that we have a deadlock prevention, उसके बाद में deadlock detection, फिर recovery, उसके पहले avoidance. So all these topics are related. So whenever I used to explain the next topic, so we just go through the previous one. So regarding this deadlock prevention and deadlock avoidance, as you can see on the screen, deadlock prevention and deadlock avoidance are the conservative techniques. Okay, they have a lot of restriction and they limit the access to the resources to the process. Okay, they मतलब के processes को काफी restriction का सामना करना पड़ता है. So these techniques are also called as conservative techniques. Okay. um, हम लोग का भी क्या करना है, हम लोग का भी डेडलॉक को क्या करना है, डिटेक्ट करना है बेसिकली. ओके. सो वी हैड कम्युनिकेशन अबाउट दैट आल्सो, दैट फॉर इफ यू आर हैविंग हम लोग ने बात किए थे कि अगर आपके पास में रिसोर्स सिंगल रिसोर्स है और अगर मल्टीपल रिसोर्स, और यू कैन से कि आपके पास में एक रिसोर्स का सिंगल इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस है, एंड you may have multiple instances of a same resource. Okay, you may have multiple instances of the same resource. Okay. तो एक ही रिसोर्स के मल्टीपल कॉपीज हो सकते हैं, एक रिसोर्स की एक कॉपी भी हो सकती है. ओके. सो in order to handle the single instance of a resource, we have used this resource allocation graph algorithm. Okay. और उसी के थ्रू हम लोग अभी करेंगे. ठीक है. और रही बात मल्टीपल इंस्टेंसेस की, हालांकि ये वाला पार्ट पहले होना चाहिए था, लेकिन मतलब अब वो मुझे याद नहीं रहा एक्चुअली, सो वो थोड़ा सा होके आगे आ गया. ठीक है. समझ रहे हैं आप लोग? डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम. ओके.
Deadlock detection algorithm can be in two ways. Okay, deadlock detection for a single instance of a resource. Deadlock detection for a single instance of a resource, and deadlock detection for a multiple instances of each resource. Okay, मतलब रिसोर्स R है, उसके एक कॉपी है, मतलब सिंगल इंस्टेंस है, और उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस भी. ओके, हाँ ओके. तो दोनों के लिए ओके. और जब हम लोग का वो चल रहा था बैंकर्स एल्गोरिथम, व्हेन वी स्टार्टेड द बैंकर्स एल्गोरिथम, देन एट दैट टाइम we discussed that when we are having multiple instances of a single resource, when we are having multiple instances of a single resource, then your resource allocation graph will not handle this kind of situation. Okay, उसको कौन हैंडल करेगा फिर? उसको हैंडल करने के लिए you required another algorithm, and the name of algorithm which you already learned is bankers algorithm. Okay, हमने ये भी देखा कि bankers algorithm कैसे मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ सिंगल रिसोर्स को हैंडल करके प्रॉपरली ये फाइंड आउट करता है whether the system is in safe state or not. If the system is not in safe state, then you will simply say that के your resources process का resources का जो requirement है it cannot be fulfilled. Okay, if you can fulfill the requirements, then it means that the system is in the safe state. Or if the system is in safe state, then you need to mention the sequence of the safe state also, that you all think you do in the sorry, in the bankers algorithm. But थोड़ा सा उसके पहले आ जाओ. ठीक है, थोड़ा सा पहले आएंगे ना, you will see that के the bankers deadlock detection for a single instance. Okay, for a single instance we have wait for graph algorithm. Okay, we have wait for graph algorithm which is very very useful in order to find the deadlock. Okay, अब सवाल ये होता है कि wait for graph है क्या बना. ठीक है, wait for graph एक ऐसा ग्राफ है which can be constructed using resource allocation graph algorithm. Okay, and you know about the resource allocation graph algorithm. You don't worry, we will take one example. As you can see, we have one example also. So this is the resource allocation graph algorithm. We'll draw over here, and then we'll try to convert this resource allocation graph into wait for graph. And we will and when we will come to know about the wait for graph algorithm, then from wait for graph algorithm or that particular graph, we can easily identify that there is a deadlock or not. Okay, so it can be easily handled. Okay, so I hope इतना आपको समझ में आया होगा कि why ये हम लोग इतना पूरा घूम फिर के चक्कर क्यों कर रहे हैं. ठीक है, why wait for graph. Okay, dead deadlock detection can be done in two ways, as I said you, for a single instance and for a multiple. देखो मैं बार बार रिपीट इसके लिए करता हूँ ना, मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि आप लोग को समझा नहीं समझा. ठीक है, सो व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग, देन थोड़ा सा टाइप करके भेज दिया करो. ओके सर, वी आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो दैट कि मैं आगे के टॉपिक्स को फिर फोकस करूँ. ओके, सो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आए. फॉर अ सिंगल इंस्टेंस एंड फॉर अ मल्टीपल इंस्टेंस. फॉर मल्टीपल इंस्टेंस के लिए वी हैव बैंकर्स एल्गोरिथम that is already covered. Okay, till now, till here also I have not received any responses whether you people are understanding or not. नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? ये जो चीज मैंने पार्ट आप लोग को एक्सप्लेन किया हो ना, तो ये ऑलरेडी हमारा हो चुका था. इसके लिए मैं सोचा कि आप लोग को शायद समझ में आ गया. बट आई थिंक नो वन इज रिस्पॉन्डिंग. मीन्स व्हाट? रोजा है आप लोग का, वाकई में अच्छी बात है. बट स्टिल यू कैन एटलीस्ट यू कैन टाइप यस और नो, और हाँ नहीं कुछ तो बोल सकते हैं आप लोग. चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. होप आप लोग को समझ में आ रहा हो. क्या करें, ऑनलाइन टीचिंग का के ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं. फायदे बहुत कम हैं, नुकसान बहुत ज्यादा है. ओके, चलो ठीक है. So for multiple instances, we have Banker's algorithm that will take care of it, and that we have already gone through. Okay. For a single instance, we will be finding the deadlock. We can detect the deadlock with the help of wait for graph algorithm. Okay. And how your wait for graph algorithm can be constructed? It can be constructed with the help of
resource allocation graph. Your resource allocation graph will be converted into wait for graph algorithm. Okay, is that clear? Now we'll take one example of resource allocation graph. Okay, एक example लेते हैं, and then we will try to convert that resource allocation graph into wait for graph, and then we will detect the deadlock from that wait for graph algorithm. Okay, so in this way we can have a detection of deadlock. Okay, so इसको मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहीं से। Let me take it, control and shift F5. Okay, so this is the topic, deadlock detection. Okay, so I'm writing, hope you can see it. Deadlock detection. ओके, रिगार्डिंग दिस डेडलॉक डिटेक्शन, ये हमारा इमेज ने भरपूर काम किया हमारा। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इमेज यू कैन इजीली कम टू नो कि भाई इन डेडलॉक डिटेक्शन इट कैन बी फॉर अ सिंगल इंस्टेंस। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि रिकॉर्ड में रहे, सिंगल इंस्टेंस, एंड दिस इज फॉर मल्टीपल इंस्टेंसेस। ओके, मल्टीपल इंस्टेंसेस। ओके, सिंगल इंस्टेंस मतलब आपके पास में एक इंस्टेंस है, ठीक है। एंड इफ यू आर हैविंग मल्टीपल इंस्टेंसेस मींस के 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, you have multiple instances. For multiple instances, we can detect the deadlock using Banker's algorithm. So we have Banker's algorithm. Okay, जो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है। For single instance, we can detect the deadlock using wait for graph algorithm. Wait for graph algorithm. Okay, and wait for graph algorithm can be uh, uh, constructed using resource allocation graph algorithm. Okay, resource allocation graph algorithm के through we can draw the wait for graph, and in wait for graph algorithm we can detect the deadlock. Okay, so deadlock can be detected. Okay, how we will come to know that there is a deadlock or not, I will let you know on that particular point. Okay, so uh, let me draw this particular wait for graph. We have total p1 p2 p3 p4 p5. So I have this p1, this p2, this p3, और क्या है p3, इसके बाद में p4 यहाँ पर है, उसके बाद में p5 में ऊपर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी जगह भी चाहिए। ओके, सो आई हैव r1 रिसोर्स r1, देन r2, एक्चुअली मैं सेम इसके ले रहा हूँ कि इसको लेके हम लोग को आगे करना है, r2, then I have r3. These are the resources which I'm showing the boxes. This is r4. Okay, r5 is there. एनी अदर रिसोर्स, कोई और रिसोर्स नहीं है, ठीक है। एरो मार्क हम लोग को ध्यान से बनाना है, एरो मार्क एकदम ध्यान से रहेंगे, बिकॉज इसके इसके ऊपर ही डिपेंड है कि आपका वेट फॉर ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। सो दीज आर दी एजेस, एंड एजेस के ऊपर एरो मार्क शोज के भाई कौन किसको एक्सेस कर रहा है, एक्सेस कर रहा है या वेट कर रहा है, ठीक है। तो r1 p2 के पास में है, देन उसके बाद में r3 को भी हम लोग ने दिया है, उसके बाद में r4, इसके बाद में p3 के पास में r3 है, एंड देन आफ्टर r5 के लिए वेट कर रहा है, p2 r5। ओके, उसके बाद में let me know whether any edges are missing or not. Yes, one edge is missing. सही है, okay, this is p5. So I think this is okay. We have got exactly same diagram. You know, this is the resource allocation graph algorithm. Resource allocation. Why this is called as resource allocation graph algorithm? In this particular diagram, you will see all the resources have been allocated to the respective processes in the said manner. Okay,
तो जो आपके सारे रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली सारे प्रोसेसेस को हम लोगों ने बांट के रखे, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कहीं पर कोई एज मिसिंग है या नहीं, तो कोई एज मिसिंग नहीं है। ओके, सो दिस इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ओके, सो कभी कभी इसको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ या फिर अल्गोरिथम भी बोलते हैं। ओके, so this is our resource allocation graph algorithm which will be given or you can easily construct from the given data. Okay, हो सकता है कि ये आपको क्वेश्चन आता नहीं है, बट पीपल यूजुअली कंस्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेटा, लाइक वी हैव कंसीडर P1 P2 P3 P4 P5 सेट दे दिया आपको, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लो P1 P2 P3 P4 P5। ओके, एंड इमेजिन यू आर हैविंग R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। टोटल आपके पास में 5 रिसोर्सेज है, ठीक है। फिर P1 इज एक्सेसिंग और P1 इज वेटिंग फॉर R1 एंड होल्डिंग R2। फिर आपको इतना स्टेटमेंट में लेके आएगा, then you need to draw the diagram, that is resource allocation graph you need to draw with the help of the given statement। ओके, तो ये ऐसा आपको सारा डायग्राम ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है आपको, इसमें कन्वर्ट करना है, वेट फॉर ग्राफ में कन्वर्ट करना है। आई विल राइट ओवर हियर, दिस इज वेट फॉर ग्राफ। ओके, सो वेट फॉर ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने की सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एज इट इज पहले हम लोग वेट फॉर ग्राफ में वी ड्रॉ ओनली द प्रोसेसेस। ओके, we will not be showing any of the resource in the diagram। ओके, वेट फॉर ग्राफ में हम किसी भी तरह का कोई भी रिसोर्स ऐड नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली प्रोसेसेस। ओके, तो चलो जो पोजीशंस उनकी है, जो पोजीशंस आपके प्रोसेसेस की है वही पोजीशंस में लेता हूँ। दिस इज P1, ओके, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4, दिस इज P5। ओके, अब रही बात एजेस की। ओके, सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द एजेस ओवर हियर। ओके, अब एजेस ड्रॉ करने के सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि P1 जो है, P1 इज होल्डिंग, सॉरी P1 इज वेटिंग फॉर R1। P1 इज वेटिंग ना, अभी मुझे आप बताओ ये चीज, ठीक है। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तब तक वो चीज क्लियर नहीं होगी। इज माय विजिबल, स्क्रीन मेरी विजिबल है? ओके, हाँ स्क्रीन विजिबल है। मुझे एक्चुअली मेरे मोबाइल में स्क्रीन दिख नहीं रही है एक्चुअली, इसके लिए मैं कंफ्यूज हुआ। ठीक है, चलो वापस आते हैं हमारे, ठीक, ये एक्चुअली यहाँ से दिख नहीं रहा ना, इसके लिए मैं, okay, so just look at the resource allocation graph. In this diagram you will see your P1 is waiting for resource R1, it is waiting for resource R1 because उसके लिए उसने apply करके रखा है, but till now it has not got the allotment of resource R1, so it is just waiting for R1। so P1 is waiting for the resource R1 which is being holded by process P2। ध्यान से सुनो, your process 1 is waiting for the resource R1 which is being held by process 2। it means that your process 1 is indirectly connected to process 2। okay, it means that your process 1 is indirectly connected to process 2। so we can draw this particular age in this way। so P1 is connected to P2, but उसका जो एरो मार्क आएगा वो ऐसे आएगा, बिकॉज यह P1 जिसकी तलाश में है, P1 जिसके लिए वेट कर रहा है वो किसके पास में, P2 के पास में। तो P1 किसको रिक्वेस्ट करेगा, P2 को रिक्वेस्ट करेगा। सो एरो मार्क विल बी टुवर्ड्स P2। एक रिजॉल्व हुआ हमारा, चलो इसको हम लोग रिजॉल्व हुआ, इसको मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। अब आते हैं P2 के पास में। सो P1 ये हमारा P1 P2 का तो मैटर खलास हो गया। ओके, अब ऊपर का देख लेते हैं। सो P1 इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स R3, P1 is waiting for the resource R3 which is being held by process 5। okay, it means that indirectly your P2 is connected to P5 with the arrow towards P5। सही है, देखो एरो आपका मार्क ऐसे ही बनेगा because your P2 is indirectly waiting for P5। okay, so I will be showing the lines in this way।
ये आपका एज ऐसा आ गया और एरो मार्क ऊपर आ गया। देखो सही है, कहाँ पर हम लोग थे, बराबर आपको ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। Now P2 is waiting for the resource R1. P2 is waiting for the resource R4, sorry, R4 which is being held by process 3. यहाँ पर भी देखो सेम मैटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि P2 is directly connected with P3 also, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से P2 को P3 से कनेक्ट कर देता हूँ और मतलब P2 के टुवर्ड मतलब P2 वेट कर रहा है जिसके लिए, वो किसके पास में, P3 के पास में। तो मुझे मेरा एरो मार्क किसके टुवर्ड्स रहेगा, टुवर्ड्स P3। ओके, सो द एरो मार्क विल बी टुवर्ड्स P3। ये बन गया आपका एक एज। ओके, अब आते हैं P3 भाई साहब के पास में। P3 P3 इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स R5। अब यहाँ पर ध्यान देखना, यहाँ पर जो है ना एक रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेसेस, एक रिसोर्स को मल्टीपल प्रोसेसेस आपके क्या कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं उसके लिए। ओके, योर P2 एंड P3 आर वेटिंग फॉर द रिसोर्स, योर P2 एंड P3 आर वेटिंग फॉर द रिसोर्स R5 which is being held by process 4। इसका मतलब क्या हुआ, चलो एक एक करो वरना मल्टीपल सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले P3 का देखते हैं। सो P3 भाई साहब जिसका वेट कर रहे हैं वो किसके पास में, P4 के पास में। इसका मतलब आपका P3 इससे कनेक्टेड है, और P3 इज कनेक्टेड टू P4। ओके, एरो मार्क टुवर्ड्स दिया। उसके बाद में your P2 is connected to, sorry, your P2 is waiting for the resource R5। अच्छा, ये हम लोग हमारा हो गया, इसको हम लोग ने लिखा नहीं। ये मार्क इसके लिए करना होता है सो दैट यू विल व्हेन यू विल कम बैक तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया और ये भी हो गया। अब ये एक एरो मार्क बाकी है, हमारा एज बाकी है। So P2 is waiting for the resource R5 which is being held by process 4। Okay, again वही सेम गुत्ती है। तो अगेन हमारा हमारा एज ऐसे बनेगा, एरो मार्क इसके ऐसे बनेगा। यहाँ तक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, P4 पे आते हैं। Now your P4 is waiting for the resource R2 which is being held by process 1। Okay, अब यहाँ पर आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के हिसाब से आपका वेट फॉर ग्राफ ये बनता है। ठीक है, और एनी अदर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ यू कैन ट्राई। ठीक है, जैसा हम लोग इसको कर रहे हैं वैसा उसको भी आप अप्लाई करके बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका P4, यहाँ पर आपका P4 है। सो P4 is waiting for the resource R2 which is being held by process 1। तो इसका मतलब P4 is connected to P1। तो एरो मार्क भी आपका P1 के टुवर्ड्स ही जाएगा। तो ये P1 के टुवर्ड्स आपका एरो मार्क। तो और कुछ बाकी है कि मुझे बताओ। ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि द कंप्लीट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज कन्वर्टेड इनटू वेट फॉर ग्राफ एल्गोरिथम। ओके, सो जब ये वेट फॉर ग्राफ एल्गोरिथम आपने कर लिया, अब इसके बाद में अच्छा अभी तो मेन मुद्दा तो बाकी है, दैट इज इन ऑर्डर टू डिटेक्ट वेदर देयर इज अ डेडलॉक और नॉट। ओके, यहाँ तक पहले सबको समझा या नहीं बताओ मुझे, एवरीवन प्लीज लेट मी नो। इतना समझा आपको हाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस वेट फॉर ग्राफ। ओके, so this is very simple that how to convert conversion of wait for graph, sorry, resource allocation graph into wait for graph. Okay, अब what is the theory? The theory said that if you find any loop, if you find any loop in the wait for graph then it means that there is a deadlock। okay, अगर आपको कहीं पर लूप दिखता है, अगर कहीं पे सर्किट कंप्लीट होती है, इसका मतलब ये है कि आपका डेडलॉक अकर हुआ है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले P1 से, वेदर देयर इज अ डेडलॉक और नॉट। डेडलॉक कब अकर होता है, जब सांप घूम फिर के आके अपनी ही दुम को काटेगा। ठीक है, तो जहां पर सर्किट कंप्लीट होगी तो वहां पर आपका डेडलॉक अकर होगा। ओके, तो जहां पर लूप फॉर्म होगा वहां पर डेडलॉक अकर होगा, बात ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे हमारा सर्कुलर वेट कंडीशन है, सर्कुलर वेट 1 is waiting for 2, 2 is waiting for 3, 3 is waiting for 4, 4 is waiting for again 1। तो क्या हो गया, लूप फॉर्म हो गया, जहां लूप फॉर्म हो गया वहां पर आपका डेडलॉक अकर हो गया। ठीक है, सो फ्रॉम दिस डायग्राम लेट मी टेल यू, योर प्रोसेस 1 is waiting for P2, P2 is waiting for P5, but P5 is not waiting for P1। so लूप फॉर्म हुआ है, नहीं हुआ। तो पहले में लूप फॉर्म नहीं हुआ मतलब अब तक डेडलॉक नहीं हुआ। योर P2
is waiting for P3, P2 is waiting for P3, P3 is waiting for P4 and P4 is waiting for P2. No, यहाँ पर लूप फॉर्म नहीं हो रहा है, बट लेकिन है अभी पिक्चर बाकी है। P2 P1 is waiting for P2, चलो मैं लिखते जाता हूँ उसको ताकि आपको समझ में आए। So P1 is waiting for P2, P2 is waiting for P3, P3 is waiting for P4 and P4 is again waiting for P1। तो भाई साहब लूप फॉर्म हो गया, मतलब ये जो आपका यहाँ पर है इसमें क्या हुआ, डेडलॉक अकर हुआ है। तो डेडलॉक हुआ है, अच्छा वहां तो हुआ ही हुआ है, साथ में एक और जो जगह पर हुआ है, P1 is waiting for P2 and P2 is again waiting for P4 and P4 is again waiting for P1। यहाँ पर भी हुआ है डेडलॉक, ठीक है। भले यहाँ पर नहीं हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ P2 P3 P4 P2 ये आपका नहीं हुआ है, बट ये दो केसेस में आपका डेडलॉक हुआ है। और ये दो केसेस में डेडलॉक हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव सक्सेसफुली फाउंड द डेडलॉक इन द गिवन वेट फॉर ग्राफ एल्गोरिथम which was constructed by resource allocation graph algorithm. Okay, so this is all about deadlock detection. Okay, समझ में आया इतना आप लोग को? डेडलॉक डिटेक्शन सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू डू इज दैट you need to convert, how to convert your resource allocation graph into wait for graph, इतना खाली समझना है। In your resource allocation graph algorithm, you will be having processes as well as resources as well as their ages with the direction. Okay, but in the wait for graph, the resources will be missing. Okay, will be having only processes and their ages. Okay, ages with the direction. Okay, so इतनी चीज आप लोग के पास में रहेंगी, so you can easily draw the wait for graph. Okay, and when you will successfully draw the wait for graph, then from that wait for graph you will easily come to know the deadlock or you can easily identify the deadlock. Okay, और एक बार डेडलॉक मिल गया तो सीधा कंक्लूजन उठा के ठोक देने का, ये here the loop is found, the loop is formed and the loop is from P1 P2 P3 P4 and P1. Okay, sometimes the question may be there, may be asked from this particular topic that write about the deadlock detection. Okay, deadlock detection and recovery या deadlock detection and prevention, ऐसे क्वेश्चन कभी कॉम्बिनेशन में पूछ सकता है। अगर पूछा तो मस्त में अच्छे से एक्सप्लेन करके डायग्राम बना के रिसोर्स एलोकेशन, इसके पहले जो मैंने बताया कि डेडलॉक डिटेक्शन कैन बी ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस एंड कैन बी ऑफ मल्टीपल इंस्टेंसेस। ओके, फॉर अ सिंगल इंस्टेंसेस there is a wait for graph algorithm which can be constructed using raga, that is resource allocation graph algorithm. Okay, and if we found the loop, and if it forms a loop then there's a deadlock, if it does not form a loop then there's no deadlock. In multiple instances of case we have bankers algorithm, bankers algorithm का क्वेश्चन अलग रहता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ओके, सो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया हो। ठीक है, अभी हम लोग फटाफट 5 मिनट के अंदर डेडलॉक रिकवरी करते हैं, ये कंप्लीट हुआ देन विल बी कंप्लीटिंग द थर्ड चैप्टर दैट इज कॉन्करेंसी एंड डेडलॉक। उसके बाद में कल तो लेक्चर नहीं है, जुमा फ्राइडे सैटरडे संडे, on Monday we'll start with the memory management, that is fourth chapter. Okay, let me show you with the help of this diagram only. ठीक है, बिकॉज ये मेरा ही खुद का वीडियो है, मेरा ही खुद का बनाया हुआ। ठीक है, सो यू विल बी फॉलोइंग दिस वीडियो आल्सो, मैं आपको लिंक दूंगा तो वहीं से आप लोग एक बार देखना वीडियो इज वेरी सिंपल, some instructions, some guidelines are there, we have to follow it, and if we follow it then we can easily recover from the existing deadlock. अब भाई डेडलॉक हुआ है तो उसको वहां से रिकवर भी तो करना है ना, क्या उसी में रहने का इरादा है? We have to come out of that situation. In order to come out of that situation, we need few solution and we need some guidelines. Okay, so that guidelines are given over here. Okay, let us start with the recovery from the deadlock. Okay, so अब detection हो गया है, now there is a deadlock is found, then we have some solution. The first solution say that all deadlock processes are aborted, मतलब आर या पार वाला मामला। How many processes were there who were involved in the deadlock? 5 processes were there in the system who are involved in the deadlock. सबको उठा के सबका सर कलम कर दिया जाए। ठीक है, सबको उठा के अबॉर्ट कर दिया। इसके अंदर हमारा थोड़ा नुकसान है। ठीक है, अब वो नुकसान क्या है, लॉस क्या हो रहा है, मैं आपको बाद में बताऊँ।
ठीक है. सो द फर्स्ट सोल्यूशन इज दैट ऑल डेडलॉक प्रोसेस आर अबॉर्टेड. सबका सर कलम सबको उठा के भगा दे. पहला सोल्यूशन अच्छा भी है, नहीं भी अच्छा है. सेकंड, अबाउट वन प्रोसेस एट ए टाइम अंटिल डेडलॉक नो लॉन्गर एक्सिस्ट. एक कैसा भी गया गुजरा इंसान है, उसके दिमाग में सोल्यूशन तो आएंगे कि भाई जो जो मतलब के कल्प्रिट्स है उनको उठा के पहले, या तो पहले सारे कल्प्रिट्स को उठा के, तो सारे सारे जितने इन्वॉल्व है सबको उठा के अबॉर्ट करो, या फिर एक एक को करो. अबाउट वन प्रोसेस एट ए टाइम until deadlock no longer exists. Okay, so if there are 5 processes who are involved in the deadlock, so आपको तो लूप पता ही चला गया. ठीक है, लूप क्या था पता है आपको? P1, P2, P3, P4, P1. ओके, मींस हाउ मेनी प्रोसेस? P1, P2, P3, P4. ठीक है, इसमें आपका बेचारा P5 इन्वॉल्व नहीं है, तो इतना तो हम लोग को समझ है. तो P5 को धक्का लगाने के बजाय पहले कहाँ से स्टार्ट करने का? P1 से स्टार्ट करने. ठीक है, तो P1 से हम लोगों ने स्टार्ट की. P1 से स्टार्ट किए, P1 को पहले उठा के बाहर फेंके, P1 को अबॉर्ट की. फिर चेक करेंगे whether there is a deadlock, whether the deadlock is formed or not. अगर डेडलॉक फॉर्म हो रहा है फिर भी, तो वापस से फिर P2 को निकालेंगे, फिर चेक करेंगी. इसका मतलब अबाउट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल द डेडलॉक इज नो लॉन्गर एक्सिस्ट. इन आर केस जस्ट हैव अ लुक. ओके, एक बार जरा करके देखते हैं. चलो भाई, सो आपने क्या किया? आपने P1 को अबॉर्ट कर दिया. जब P1 को अबॉर्ट किए तो बताओ मुझे बाकी है क्या? आपने P1 को अबॉर्ट कर दिया, ठीक भाई साहब, निकल गए. तो अभी भी तो फॉर्म हो रहा है क्या कुछ फॉर्म? P1 जब आपने हटा दिए तो P2, P3, P4 यहाँ से फॉर्म नहीं हो रहा है. P4 यहाँ, मतलब आपका एक ही प्रोसेस को अबॉर्ट करने से आपका डेडलॉक निकल गया. इन केस, चलो, इन केस अगर आपने P1 को अबॉर्ट नहीं किया होता, आपने P1 को अबॉर्ट नहीं किया बल्कि P2 को अबॉर्ट किया, आपने P2 को अबॉर्ट किया है. चलो यहाँ से हमने P2 को हटा दिया, तो क्या अभी भी हमारा लूप फॉर्म हो रहा है? अभी भी लूप फॉर्म है. मतलब आप किसी भी, अगर देखा जाए प्रैक्टिकली, सो इफ विल रिमूव ओनली वन प्रोसेस, देन योर डेडलॉक कैन बी एलिमिनेटेड, योर डेडलॉक कैन बी प्रिवेंटेड. ठीक है, तो हमारे पास में ऑप्शन है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली सामने था डायग्राम से करके बता दी. सो वी हैव दिस थियरी दैट वी नीड टू फॉलो दिस थियरी कि भाई या तो सारे पहले प्रोसेस को उठा के अबॉर्ट कर दो, या फिर अबॉर्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम एंड चेक वेदर देयर इज अ डेडलॉक, स्टिल देयर इज अ डेडलॉक और नॉट. if still there's a deadlock, target the next one, then go for the next, and then check if it is okay, then ठीक है, और अगर नहीं हुआ then target the next one, and so on. So in this way we can come out of the, and we can recover from the deadlock. Okay, this is the very simple solution for the deadlock. Second, थर्ड, प्रीम्प्ट. देखो ये दो जो थे रास्ते, ये प्रोसेस को लेकर थे, इन्हें प्रोसेस को टारगेट करके हम लोग ने किया. अब क्या प्रोसेस अकेले हैं जो कि कल्प्रिट्स हैं? नो, वी हैव रिसोर्सेज टू. ओके, हमारे पास में रिसोर्सेज भी है जिन्होंने बहुत मस्ती कर रखी है. ठीक है, सो वी हैव टू प्रीम्प्ट ऑल द रिसोर्सेज अंटिल डेडलॉक नो लॉन्गर एक्सिस्ट. प्रीम्प्ट ऑल द रिसोर्सेज अंटिल डेडलॉक नो लॉन्गर एक्सिस्ट. एक काम करो, सारे के सारे रिसोर्सेज निकाल दो, या इसको और भी कर सकते हैं, एक एक रिसोर्स निकाल के भी वी कैन चेक वेदर स्टिल देयर इज अ डेडलॉक और नॉट. ओके, तो फिर हम लोग को वापस से रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में से वापस से बनाना पड़ेगा, एंड देन वी नीड टू चेक. ओके, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, उसके बाद में एक और सॉल्यूशन है. देखो, अच्छा देखो, अब जिसकी मैं बात कर रहा था ना आप लोग को, कि पहला वाला जो है ऑल डेडलॉक प्रोसेसेस आर अबॉर्टेड, इसके अंदर हमारा नुकसान भी, हमारा भी नुकसान, वो क्या है मैं आपको बाद में जो बताऊंगा, ऐसे मैंने आपको बोला था. अब ये फोर्थ पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूँ, ध्यान से सुनो. वाइवा क्वेश्चन कभी कभार से पूछता है. बैकअप ईच डेडलॉक्ड प्रोसेस, बैकअप ईच डेडलॉक्ड प्रोसेस टू सम प्रीवियसली डिफाइंड चेक पॉइंट. देखो, यू माइट हैव सीन अ चेक पॉइंट कॉन्सेप्ट इन योर, आप उसको बोलते हैं सिस्टम रिस्टोर. इन योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज ऑप्शन जिसका नाम है सिस्टम रिस्टोर. ओके, इफ आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में अगर कहीं पर आपने चेक पॉइंट बना के रखा है, अपने सिस्टम में अपने एक रिस्टोर पॉइंट बना के रखा है, एंड अगर बाद में आगे चलकर अगर कभी कुछ इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, लाइक इन टर्म्स ऑफ वायरसेस आ गए हैं, कुछ और प्रॉब्लम हो गया है, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, एंड यू वांट टू प्रीवियसली रिस्टोर, आपको प्रीवियसली चेक पॉइंट पर रिस्टोर करना है,
देन आपने पहले से जो रिस्टोर पॉइंट बना के रखा था उसके ऊपर आप रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कि जिन लोगों ने यूज किया होगा वो लोग फौरन समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और जिन लोगों ने वो ऑप्शन यूज नहीं किया होगा तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो होता है ना, आप लोग जब गेम भी खेलते हैं तो जगह जगह पर आपको सेफ हाउस होता है। यू माइट हैव प्लेड GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास and other action games in which you will see the safe houses. Okay, so you need to enter into the safe house and you need to save your game, whatever part you have played till now, so you can save it. Okay, and after that you can come and then you can go। अगर कहीं चल के अगर आप कभी लॉस भी हो जाते हो कहीं पर चल के, अगर आप मतलब मर भी जाते हो, तो फिर भी आप अपने वहां सेफ हाउस से वहीं से जाकर अपने उस पर्टिकुलर सेफ प्रोफाइल से गेम को वहीं से रिस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता रहे। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इसका भी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने बोला आपको जितने अभी डेडलॉक हुआ सारे प्रोसेस को उठा के बाहर फेंक। इसमें हमारा नुकसान ऐसे है, हो सकता है कि आउट ऑफ these 5 processes your P1 has completed 50%, your P2 has completed 80%, your P3 has completed 70%, and your P4 has completed 40%, and your P5 has completed 90%। तो 50, 70, 80, 90, 40 इतना जो कंप्लीट किया था उन लोगों ने, हमारा सबका सब लॉस हो जाए। मैंने क्या बोला आप लोग को, उसमें हमारा लॉस है। तो ये लॉस इस तरीके से है कि वॉट एवर अमाउंट ऑफ परसेंटेज वी हैव ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट विल बी लॉस्ट। ओके, और फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देन अगेन वी नीड टू रिस्टार्ट फ्रॉम द जीरो पॉइंट। तो इससे अगर बचना है तो एक एक करके करो। तो उसमें हमारा ये क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो हमारा रिस्टोर पॉइंट है वहां से अगर हम रिस्टोर करते हैं तो इट विल बी अ गुड आइडिया फॉर ऑल द प्रोसेसेस, तो हमारा ज्यादा नुकसान नहीं। थोड़ा सा पीछे जाओ और वापस से उसको लेकर वापस से एग्जीक्यूट करो, इंस्टीड ऑफ वापस से पॉइंट जीरो पे जाके वापस से मतलब रिस्टार्ट करो रेस को। तो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, उसके अंदर हमारा नुकसान है, टाइम भी जाएगा और कॉस्टिंग भी जाएगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट इशू वी कैन डू दिस फोर्थ ऑप्शन। अगेन अब मैं रीड कर रहा हूँ, खूब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बैकअप ईच डेडलॉक्ड प्रोसेस टू some previously defined checkpoints, okay, and restart the process। तो पीछे जाओ, क्या वो 50% हुआ था, चलो 40% पे तो आपका रिस्टार्ट पॉइंट होगा। ठीक है, तो 40% से रिस्टार्ट कर दो, हमारा 40% जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो हमारा बच गया। ठीक है, बिकॉज ये प्रोसेसिंग के अंदर हमारे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जहां पर ये हमारा टाइम बचा तो दूसरे प्रोसेस को भी हम लोग टाइम दे सकते हैं। ओके, so these are the four solution। मैंने इसका एक सेकंड, 1 2 3। ओके, सो द फर्स्ट टू सोल्यूशन वी वर टॉकिंग अबाउट। देखो पहले मैं आपको वो बता दूं कहाँ पर हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट दी प्रोसेस टर्मिनेशन। हम लोग प्रोसेस को अबॉर्ट करने की बात कर रहे थे ना इन द फर्स्ट पॉइंट, एज अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द डेडलॉक रिकवरी। ओके, डेडलॉक से रिकवर करने के लिए कुछ जो सोल्यूशन हम लोगों ने दिए थे उनमें उन सोल्यूशन में से पहला सोल्यूशन था कि आप अपने सारे प्रोसेस को अबॉर्ट कर दो या एक एक प्रोसेस को अबॉर्ट करते हो। मतलब या हमको मतलब इन दैट मैनर वी हैव टू अबॉर्ट द प्रोसेसेस। ओके, इट मींस कि हम लोग को प्रोसेस टर्मिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो प्रोसेस टर्मिनेशन कैसे हो उसके बारे में कुछ डिस्कशन। ठीक है, so the first option is that about all deadlock processes that is expenses will be moved, as I told you कि उसमें हमारा नुकसान है। ठीक है, तो या तो आप ये करो कि सारे के सारे जितने भी डेडलॉक्ड प्रोसेसेस है, द प्रोसेसेस हु आर इन्वॉल्व इन डेडलॉक, उन सबको अबॉर्ट कर दो, उन सबको टर्मिनेट कर दो। पहला तो ये ऑप्शन। उसमें हमारा नुकसान ये रहेगा कि जितना एक्सपेंसेस जितना टाइम कॉस्टिंग हमको लगा है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, सो सारा का सारा हमारा लॉस हो जाएगा। सो दैट वी नीड टू टेक केयर, वी नीड टू कंसिडर। ओके, सेकंड ऑप्शन हमारे पास में ये है कि अबाउट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। ओके, एक को हटाओ, चेक करो साइकिल अभी भी है क्या, अभी भी है। सेकंड को उठाओ, सेकंड को अबॉर्ट करो, फिर चेक करो, चलो अब साइकिल आपका रिमूव हो गया, साइकिल हट गया,
तो चलो वापस से आगे चलो हो जाओ, ठीक है। So that can be done when we talk about the process termination. Okay, when we talk about the resource preemption की जहां पर बात चलेगी वहां पर भी हमारे पास में कुछ ऑप्शंस। The preemption of resources from process allocation from the process. Obviously, resource को preempt आप कहाँ से करेंगे? These resources were initially allotted to the processes. तो इनको लेना भी किसके पास में से है? इनको हमको process के पास से लेना है. Okay, so preemption of resources from the processes. एक्चुअली वर्ड्स बहुत आगे पीछे एक दूसरे से मैच करते हैं, इसके लिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो उसमें कंफ्यूजन की बात तो है लेकिन थोड़ा सा समझ के लेना। एलोकेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज टू अदर प्रोसेस, क्या करो, इसके पास से लो दूसरे को दो, इसके पास से लो दूसरे को दो, उसके पास से लो दूसरे को दो, और फिर चेक करो, ठीक है। तो प्रोसेस प्रीमिशन के अंदर आप लोग पहला काम ये कर सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं। कैसे इश्यूज आ सकते हैं? चलो, आपने प्रोसेस 1 के पास में रिसोर्स R1 को ले ली, यू हैव प्रीएम्प्टेड द रिसोर्स R1 फ्रॉम प्रोसेस P1। अब उसके पास में लेने के बाद में you will be having a very big question that in your mind which comes in your mind that के ये रिसोर्स R1 अब दो किसको, ये रिसोर्स R1 अब देना किसको है। सो विच रिसोर्स एंड विच प्रोसेस विल बी द टारगेट, कौन सा रिसोर्स मुझे प्रीम्प्ट करना है और कौन से प्रोसेस को ये रिसोर्स देना है। ओके, ये आप लोग को डिसाइड करना रहेगा एट दैट टाइम, एट दैट सिचुएशन। सेकंड, व्हाट शुड बी डन विद द प्रीम्प्टेड प्रोसेस। अब जो प्रोसेस को हम लोग ने प्रीम्प्ट किया है तो उसके साथ में क्या करना है, उसको अवॉइड करना है या चुपचाप रहने देना, ठीक है। ये भी हमारे लिए सेकंड क्वेश्चन है। तो दीज आर सम इश्यूज while we are preempting the resources from the processes। हाँ, और एक सेकेंड, ठीक है, इतना इतना आप लोग के लिए काफी है, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग दी डेडलॉक रिकवरी। तो इन डेडलॉक रिकवरी में या तो आप क्या करो, प्रोसेस को टर्मिनेट करो, एक को करो, सारों को करो, आपकी मर्जी, ठीक है। या तो आप रिसोर्स प्रीम्प्ट करो, रिसोर्स को हम लोग टर्मिनेशन का नहीं बोल सकते कि जस्ट टर्मिनेट द रिसोर्स, दिस इज नॉट अ प्रॉपर स्टेटमेंट, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रीम्प्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोसेस। ओके, सो या तो आप प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हो, पहला ऑप्शन, एक को करो मल्टीपल को करो, या तो आप रिसोर्सेज को प्रीम्प्ट कर सकते हो, एक को करो या मल्टीपल रिसोर्स के करो। उसमें कुछ इश्यूज आते हैं। अब आपने जो प्रोसेस को निकाला है या जो रिसोर्स को आपको निकालना है तो कौन से प्रोसेस को टारगेट करना है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन। कौन से रिसोर्स किसके पास से लेना है, किसको देना है, ये आपके सामने क्वेश्चन। ओके, तो ये कुछ चीजें माइंड में रख के हम लोग को रिकवरी करना, ठीक है। सो रिकवरी में यही सारे पॉइंट्स थे आपके। ये रिकवरी में दीज आर द सॉल्यूशन एंड फॉर द सॉल्यूशन वी हैव सम इश्यूज। ओके, so these issues we need to discuss regarding process termination and regarding resource preemption। Okay, so I hope ये आप लोगों को समझा हो recovery from the deadlock, how to done the recovery and what are the guidelines, what are the solution in order to recover from the deadlock, existing happened deadlock। Okay, so this all completes your third chapter, that is uh, concurrency और हाँ concurrency and deadlock, जो भी chapter का नाम है। For the first part was regarding concurrency, second part was regarding deadlock। Okay, so let me take a revision of this particular deadlock one। क्या हम लोगों ने किया है deadlock के अंदर, इसके अंदर तो नहीं है। डेडलॉक हम लोग ने स्टार्टिंग में डेडलॉक के बारे में पढ़ा, डेडलॉक की सिचुएशन पढ़ा, डेडलॉक के एग्जांपल्स देखे हम लोगों ने, और एग्जांपल से हम लोग ने समझे कि डेडलॉक क्या होता है, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड डेडलॉक को डिटेक्शन है, हालांकि ये सब पॉइंट आना चाहिए था। डेडलॉक का अवॉइडेंस है, डेडलॉक का प्रिवेंशन है। इन डेडलॉक प्रिवेंशन ऑल फोर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को क्या करना था, हम लोग को प्रिवेंट करना था, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द डेडलॉक। उसके बाद में डेडलॉक डिटेक्शन के अंदर the deadlock can be detected using in two ways, one is for the single instance, second is for the multiple instance।
For single instances, we have resource allocation graph algorithm, which can be converted into the wait for graph algorithm. And from that, if the loop is there, if the loop will be forming, then we will say that okay, there is a deadlock. For multiple instances, we have bankers algorithm that we have already taken two examples of bankers algorithm. Okay. And last one, that is deadlock recovery. In deadlock recovery we have multiple solution. या तो एक प्रोसेस को निकालो, या तो एक आपके सारे प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो, या तो फिर एक रिसोर्स को निकालो, या तो सारे रिसोर्सेज को निकाल के फेंक दो, या फिर अपने प्रोसेस को लास्ट जो आपके प्रीवियसली चेक पॉइंट जो था वहां से रिस्टार्ट करो. ठीक है. So these are the possible solution for deadlock recovery. Okay. So here we stop.